All right, so questions from the media. आयुष ताहिरा, मेरा सवाल आपसे है। मेरा नाम आलोक है, मैं OAV वास्तव से हूँ आपके लाइफ में। मेरा सवाल है ये वीडियो थोड़ा सा डूबा डूबा जैसा मुझे थोड़ी उसकी झलक दिखाता है, तो आपके भी जहन में कुछ ऐसा था या? उस वक्त तो नहीं आया पर आप बोल रहे हैं। एंड मेरी एक टीचर ने मुझे कुछ कहा था, माई PhD गाइड, शी टोल्ड मी देयर इज नथिंग इनोवेटिव इन दिस वर्ल्ड, व्हाटएवर यू थिंक, इफ एन आइडिया हैज स्ट्रक यू, आपको लगता है कि आप पहले इंसान हो, ट्रस्ट मी 10,000 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं कर चुके हैं, पर आपकी ट्रीटमेंट अलग हो सकती है, आपका वे ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन अलग हो सकता है। सो व्हाटएवर वी, यू कांट हियर मी, ओके, but you could hear me, right? मुझे आपकी आवाज़ आ रही। Huh. So that, like I told you, my PhD teacher, that's what she told me when I was trying to finalize my PhD topic. She told me, and I thought it's a very unique topic what I've come up with. She said, even if it sounds unique right now, this idea must have been implemented somewhere in the world at least 10,000 times. What you can do is you can add another, your treatment matters. So if डूबा डूबा हुआ है तो हुआ होगा, but हमारा treatment अलग था, और if it bears close resemblance to it, yeah. Van which is parked there. I think हमारे केस में डूब नहीं पाया। आयुष्मान, अगर आप 2 लाइनें हमारे लिए अनप्लग्ड गुनगुना दें, क्योंकि रोचक हैं नहीं तो। I wish वो वहाँ पे होता और गिटार स्ट्रम कर सकता मेरे साथ। मैं खोया तो ढूंढ रहा हूँ, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों की सतह से मुझे बुलाइयो, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे तोड़ के मैं। Thank you. Beautiful. Ayushman on your left. Ayushman here. सत श्री अकाल। कितना ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ। First of all, congratulations, बहुत ही चंगा है वीडियो, बहुत ਵਧੀਆ है, दिल ਨੂੰ छू ਲੈਂਦਾ है। My question to you is, ताहिरा मैम ने जैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया है, तो जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ रिजेम्बलेंस है रियल लाइफ से, सो जस्ट टू इम्प्रेस ताहिरा मैम, आपने सबसे क्रेजीएस्ट थिंग क्या किया है? आई थिंक उसके लिए मैं गाने काफी गाता था कॉलेज में। अब मुझे पैसे देने पड़ते हैं, आई कांट अफोर्ड हिम। Craziest thing would be, I think, the way I proposed to her. I think that was quite crazy. चंडीगढ़ की ठंड में जब हमने बाहर पार्किंग लॉट में मैंने एक शामियाना लगा दिया था, when I proposed. So I think that was quite crazy. Yeah. वो धुन से firecrackers नजर नहीं आए थे, इतनी fog थी वहाँ पे। We're not very wild people, so don't get any I'm a thoughts. subtle guy, so it's like that. ओके, वन मोर क्वेश्चन। अभी सिंगल का जो ट्रेंड चल रहा है, नो, टैलेंट्स को भी काफ़ी प्रमोट किया जाता है। डू यू थिंक दैट डिड यू मिस सिंगल्स या इस तरह का ट्रेंड ड्यूरिंग मिड 2000, ऐसे आपने कभी मिस किया? डू यू थिंक तब हुआ होता तो और अच्छा होता था? I think of course in 90s and early 2000s there was a trend and singles used to do really well. They were at pars with the actors, like there were a lot of good bands playing that time. But of course there were no takers for singles for quite a long time. For 10 years, and I'm glad that T-Series and Bhushan Kumar sir, they've taken this initiative of, promoting singles, promoting indie music, and there's this sizable amount of audience, especially youngsters who consume music online and they want to listen to good songs which are different from film songs. So I think for those kind of people, singles will work, and it just propels the music industry further, and I think hats off to T-Series for doing that. Hi Ayushman. How are you doing? I'm good, man. I can't please you. Yeah. Hi. Hi. The song is of course great. It must have been fun to be back with Yami. I think a lot of memories and Vicky Rono memories coming back, I'm sure. Tell us about it. I mean, the chemistry is still there clearly. The only difference was that I had no abs that time. Rest was the same. In fact, Yami and I, we go back a long way. In fact, my first internship was with her dad. My first documentary film was with her dad on Bulle Shah, famous Sufi poet of Punjab. So उनके साथ मैंने documentary की थी, Mr. मुकेश गौतम के साथ. And we are family friends, बचपन से जानते हैं. So yeah, and the chemistry was very organic, as Tahira said. Like she thinks that our chemistry is organic, is amazing. Yeah, it is. It is. Thanks. I agree. They look beautiful on screen. On screen only. Only on screen. Approved. Another question is that you did a very interesting video on Bollywood cliches, isn't it? Yeah. Tell us about that. It was a really interesting. In fact, the thing is, we love cliches.
Like there was a time in 90s when I used to hate cliches, but in the retrospect, when you look back, you start loving cliches because it's nostalgic to just look at those cliches, watch those movies. कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, ये सब जो typical dialogue होते थे, तो उस पे हमने spoof किया था for Mami Film Festival in fact, in collaboration with the Viral Fever, and did pretty well. I think I was very happy doing it. So yeah, thanks Rudrani. आयुष्मान, आपका जो गाना है पानीदा रंग काफ़ी फेमस हुआ था, उसके बाद भी कुछ गाने आपने गाए वायरफ के साथ आपने सिंगल किया था, लेकिन आपकी इमेज के साथ वो पानीदा रंग स्टक हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता? और इस बात की टीस है कि कोई और गाना उससे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ? ऐसा होता है कि आई थिंक पानीदा रंग ऑफ कोर्स फॉर माय फर्स्ट सॉन्ग विद रोचक, इट हैड दैट वेट ऑफ द फिल्म आल्सो विद इट. पानीदा रंग को पानीदा रंग बनाने में विक्की डोनर का बहुत बड़ा हाथ था. तो ऑफ कोर्स जो फिल्म के नैरेटिव के साथ गाना जाता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोग उसे एक्सेप्ट करें. इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर अ सिंगल टू कट थ्रू दैट, एंड अदर सॉन्ग्स आर लाइक साडी गली विद नौटंकी साला, then Mitti the Khush was a single, Oh Hiriye was with Yash Raj Films, but yeah, now this one with Yahi Hu Main. But the best part is that T-Series is such a label which promotes the song really well, and when you just go to the YouTube page, you'll just see the most watched videos, and Yahi Hu Main will be there. So I think if T-Series taken that initiative, तो वो गाने को हिट बनाने का जो उनके पास एक स्किल है वो उनके पास है, एंड इट्स अमेजिंग. जैसे मतलब पानीदा रंग आपको उस ऐसा कुछ जानना नहीं है, बिकॉज आई थिंक विक्की डोनर हैड अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले पानीदा रंग को पानीदा रंग बनाने में. कहीं ये थॉट क्रॉस करता है माइंड में आपकी कि आगे जो भी आप फिल्में करें सारे गाने खुद ही गाएं, कभी ऐसा ख्याल आता है? ऐसा कभी नहीं होता है, इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं. इनफैक्ट दम लगा के एशिया में डायरेक्टर ने बोला था कि तू गा ले, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कुमार सानू का फैन बना हूँ फिल्म के अंदर, मैं कैसे गा सकता हूँ. वैसे ही वो जो इंसान वो प्रेम प्रकाश तिवारी जो उसके अंदर था वो गाता हुआ अपनी आवाज़ में अच्छा लगेगा नहीं. सो आई थिंक द एक्टर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सिंगर, एंड दैट वाज अ डेलिबरेट एफर्ट. इन कंटेम्प्रेरीज आई थिंक सोनू निगम जैसा लाइव सिंगिंग कोई नहीं कर सकता, सुखविंदर सिंह जैसा लाइव सिंगिंग कोई नहीं कर सकता. Arijit Singh is amazing, and the best part about this era is that we're getting a lot of textured singers. अपनी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है. If you are a Me Too singer, like आपको काफ़ी दौर नज़र आते हैं कि ये रफ़ी साहब की तरह गाता है, या किशोर साहब की तरह गाता है, या उदित जी की तरह गाता है. तो आई थिंक आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है. एंड दो आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर, पर मैं इस बात पर गर्व रखता हूँ कि मेरी अपनी आवाज़ है. आयुष्मान, इसमें जो लीड हैं बात करें यामी की, वो क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी खास मौका है, तो कोई आई हैव नो आइडिया. भूषण सर वो क्यों नहीं है? शी इज बिजी शूटिंग. शी इज बिजी शूटिंग. ताहिरा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरी वजह से नहीं है भाई. इट वाज यामी का है ताहिरा. शूटिंग फॉर सनम रे, दैट्स व्हाई शी वाज नॉट हियर. जहाँ तक स्टोरी लाइन की बात है, क्या आप शूट्स में भी जाती थी या प्रोडक्शन वगैरह? No. I wasn't there. I just gave them the concept and they took off from there. भूषण जी, फिर अब नेक्स्ट सिंगल हम किसके साथ देखने वाले हैं? अभी next is coming with a newcomer called Gurinder from London, and that we are shooting on Suraj Pancholi and Jacqueline Fernandez. मिस्टर कुमार, खान्स भी आएंगे अपने सिंगल्स के लिए? आपने अप्रोच, ये बातचीत कुछ की है ऐसा कुछ? अभी इतने अच्छे सिंगल्स हम कर रहे हैं तो काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं. सो but next one is this, and then we are launching Sonakshi Sinha also. Singing herself? खुद गा रही है? हाँ, she's That's singing. amazing. कंपटीशन ले हो सर, कोई बात नहीं. हेलो आयुष्मान जी. सब एक्टर को घुमा लो. आयुष्मान जी यहाँ. हाय. आई एम रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर मैगजीन. ओके. आप जिस तरह गा रहे हैं और इस तरह ये जो आपका अच्छी आवाज़ है, हिट भी हुई, तो आप बचपन से ये गाने का शौक रखते थे? यू लिसनिंग टू मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार? ऑफ कोर्स, आई थिंक इन्फ्लुएंसेस बहुत थे रफ़ी साहब के, किशोर साहब के, और सूफी इन्फ्लुएंसेस काफ़ी थे. काफ़ी पंजाबी सॉन्ग्स मैं सुनता था. गुरदास मान साहब लेजेंड है पंजाब के, उनको काफ़ी हम सुनते हैं. तो आई थिंक ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसेस आप पर बहुत रब ऑफ कर जाते हैं. एंड आई ऑलवेज फील दैट आई वाज अ प्रॉब्ली बेटर कंपोजर देन अ सिंगर. मैं हमेशा ये सोचता था. पानीदारंग के टाइम पर भी जब सुचिता को मैंने सुनाया था गाना, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी प्योरेस्ट सिंगर से गवाऊंगा. फॉर एग्जांपल मैं सोनू जी से गवाऊंगा, या फिर सुखविंदर जी से गवाऊंगा, या राहत जी से गवाऊंगा. बट आई थिंक एक ऑर्गेनिक, एक रॉनेस जो वॉइस में है, जो एक कलोकियल वॉइस है, वो शायद सुचिता को पसंद आई थी. सो दैट्स व्हाई ही लॉन्च्ड मी एज अ सिंगर एक्टर इन द फर्स्ट फिल्म. बट या, इन्फ्लुएंसेस वर देयर ऑफ ऑल द पंजाबी फोक म्यूजिक, एंड
Indian retro music as well. फैमिली में ऐसे थे जो म्यूजिक से लगाव रखते मेरी दादी गुरुद्वारे में गाती थी ओके और डैड फ्लूट बजाते हैं, तो ये इन्फ्लुएंसेस हैं आई थिंक. म्यूजिकल सपोर्ट काफी हाँ. है. थैंक यू, ऑल द Though he's not a flautist, but yeah, he plays flute for fun. All the best. Yeah, thank you. आयुष्मान, प्रशांत ETV से. Hi प्रशांत, प्रशांत महासागर. थैंक यू. Specific question. अक्सर हाँ. बात होती है जब प्यार की, या जिस तरह से हमें नजर आ रहा है इस पूरे एल्बम में, कि प्यार के साथ एक खलिश जुड़ी हुई है, उसके साथ अधूरापन भी जुड़ा हुआ है. तो क्या इसको शूट करते हुए, हिमाचल की वादियों में शूट करते हुए इस तरह की खलिश महसूस हुई? आई थिंक ठंड से काफ़ी खलिश महसूस हुई थी कि इस टाइम हिमाचल में बहुत ठंड है. हम मुंबई वाले बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी ठंड होती है, हम जैकेट्स निकाल लेते हैं. वहाँ पर आपको बहुत कुछ निकालना पड़ता है, वार्मर्स, 4-5 लेयर्स, तब आपकी ठंड रुकती है. पर आई गेस वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट में एक थोड़ा सा दर्द होना चाहिए प्यार में. जब तक वो नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता प्यार का. जब तक आपके प्यार में लड़ाई नहीं होती रोज आप मनाते नहीं हैं, तब तक आपको फन नहीं होता उस रिलेशनशिप में. सो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ द स्टोरी, व्हिच रियली वर्क्स आउट वेल. या ऑफ कोर्स, एक तो भूमि के साथ होगी, पंजाब में फिल्म कर रहा हूँ, और बाकी 2 अनाउंसमेंट्स और होने वाली हैं. ऑफ कोर्स यू नो अबाउट इट. आई थिंक सिंगल के बारे में बात करते हैं आज. थैंक यू सो मच गाइस. आयुष्मान भव.